ओके, तो ये पॉज जोन्स कहलाते थे। तो अब ये क्या है कि नीचे से जो कहा गया था, अब ये टेम्परेचर क्योंकि रिसीड हो रहा था, तो सरफेस से लेकर पहले पॉज जोन तक के एरिया को इन्होंने एक नाम दिया, ट्रोपोस्फियर, वेयर एवरीथिंग डिक्रीजेस एज वी गो हाई। अब वो पॉज जोन के बाद देखा गया कि फिर से रिसीड होना चाहिए था, लेकिन नाउ द फिनोमेना डिफर्स। अभी टेम्परेचर वापस इंक्रीज होना शुरू होता है, वापस टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है। ये होते होते ये भी कुछ अल्टीट्यूड में आप और ऊपर जाते जाएंगे, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर यहाँ जब स्टेबल था वो अब इंक्रीज होना शुरू हुआ है, फिर वो भी कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद फिर से स्टेबल टेम्परेचर पे आ जाएगा। दैट इज अनदर पॉज, द सेकंड पॉज, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। राइट, फिर देखा गया है कि उस पॉज के बाद फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। ये बड़ा डांसिंग टेम्परेचर लाइंस, अगेन it you know decreases एंड अगेन डिक्रीज होते होते कुछ अल्टीट्यूड के बाद ये फिर से स्टेबल रीजन पे आ जाते हैं, जिसको so so what happened from the surface when we started, we have reached a pause position. That's the first pause position, which is called, what is that called? I told you now. I just now I told you. What is that? Tropopause. And that region, the volume, the sphere, which is from the surface to the tropopause, is called troposphere, right? From till this tropopause, the temperature was decreasing. And from tropopause, it again starts increasing to a point. And that point, again, it becomes stable. The temperature becomes stable. It doesn't change, it doesn't vary. That was called stratopause. That means from the tropopause to stratopause, we have stratosphere, right? Stratos means layered sphere. Because in stratosphere, why it's called stratosphere, layered sphere? Why? Because the tropic means tropical, which is nearer to us. So it's when near to the surface, so it's called troposphere. And then the second zone was called stratosphere, stratified or layered, because a mixture of gases zone is there. And then there comes the ozone layer, and then again mixture of gases in that layer. So that way it seems as if there's three different layers out there. So that's why stratosphere. So after stratosphere, again the temperature starts decreasing. अब वो कम होते 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 फिर एक पॉइंट पे, एक हाइट पे ऐसे पहुंचते हैं कि अगेन द टेम्परेचर बिकम्स स्टेबल. दैट्स अनदर pause area, pause 3. That's called mesopause, right? Meso, the middle one. Because by the time we would reach around 100 kilometers, more than 100 kilometers, almost half of the atmosphere, that was, it was called meso, the moderate, the middle. Okay, again the mesosphere and the troposphere. The mesosphere is the region between the mesopause and the stratopause, right? The zone of atmosphere. अभी देखा गया कि मेसोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर दोनों एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, दोनों में टेम्परेचर डिक्रीज होता है. नाउ दैट्स अनदर वन, दैट्स कॉल्ड थर्मोस्फीयर. अब यहाँ कोई पॉज नहीं है, because after this distance we usually see almost very thinner atmosphere, very lightly dense atmosphere, denser
डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो वो मॉलिक्यूल्स हमारे जो मिक्सचर ऑफ गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं और सिर्फ लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं जो यूजुअली दे कैन गेट आयोनाइज्ड। इसलिए कुछ कुछ बुक्स में आपको ये मिलता है कि वो आयनोस्फीयर है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हीट पड़ती रहती है, सन के रेडिएशंस उस पर आते रहते हैं. Those molecules might get excited and get into ionic forms. So from the surface, the temperature starts decreasing. I'm showing increasing. The temperature starts decreasing as we go higher and higher in the altitude. At some point, it becomes stable. The temperature becomes stable. That point is called first pause point. Is called tropopause. And then the temperature starts increasing. And at one altitude, again, it becomes stable. That is pause 2. That is called stratopause, right? And then temperature again starts decreasing as in troposphere. And then it again reaches to a pause position, that is pause 3. That is called mesopause, right? And from mesopause onwards, the temperature usually increases, and increases. Okay, it increases so much it reaches up to, I don't know to what temperature it goes. It's too much. 3000 तक भी जाता है ऐसा कहते हैं. But as we go farther and farther and farther in distances away from the surface, because after the mesopause, the region is called usually thermosphere because the temperature is too much over there, and the gases are so lightly dense that you would rarely find any atmosphere-like gases. And then we end up into vacuum. These gases were trapped just because of the gravitational force of our Earth. The Earth's gravitational force becomes so weak at that point that these gases are not, called or compacted or compressed together. Now there's too much of. सीधी सी बात, आप एक सर्कल है, उसके चारों तरफ आप कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते जाएंगे. सबसे बाहर वाला जो रहेगा, सब में एक ही वॉल्यूम डालेंगे तो सबसे बाहर वाले जोन में आपको डेंसिटी बहुत कम हो जाएंगे बिकॉज द सर्कल बिकम्स बिग. ठीक है. एनीवेज, तो अब ये हमें समझना है कि कौन कौन से कितने कितने ऑल्टीट्यूड पे ये होता है ना. एक तो ये समझ आया कि 3 पॉजेस हैं. पॉज 1 ट्रोपोपॉज, पॉज 2 स्ट्रैटोपॉज, पॉज 3 मेसोपॉज. और ये तीनों पॉजेस के बीच में और लास्ट पॉज के बाहर हम जोन्स को काउंट करते हैं. पहला जोन सरफेस से लेकर ट्रोपोपॉज तक, ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोपॉज से स्ट्रैटोपॉज तक, स्ट्रैटोस्फियर. एंड स्ट्रैटोपॉज से लेकर ऊपर थर्ड पॉज तक, मेसोपॉज तक, मेसोस्फियर. एंड मेसोपॉज के बाद जो रीजन है दैट इज कॉल्ड ईज़ोथर्मोस्फियर. अब कई लोगों ने उसको हेट्रोस्फियर के नाम से भी जाना है. लेकिन अब हेट्रोस्फियर कहाँ से शुरू होता है? क्योंकि देखा जाए तो हमारा जो ओजोन का जो लेयर है, अब एक अलग तरीके से हम इसको काउंट कर रहे हैं. ओजोन का जो एक लेयर है हमारे अर्थ के चारों तरफ, उसके नीचे का जो गैस है वो ट्रैप्ड है ना. तो जितनी भी गैसेस है वो वही है, राइट. तो कैसे वो घूमते हैं अर्थ के मूवमेंट के साथ साथ, वो भी घूम रहे हैं, बट इट इज द होमोजेनस मिक्सचर. एक बहुत सारी चीजों से मिक्स्ड है, वो पूरे होमोजेनसली मिक्स्ड है. तो हम यूजुअली ट्रोपो और स्ट्रैटो के बाद, ओजोन लेयर के बाद, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में आता है. तो वहां के बाद हमने देखा कि अब वहां पे कोई चीज है नहीं, कोई चीज उसको कंट्रोल करने के लिए है नहीं. एक ग्रेविटेशन था जो उसको खींच के रखी हुई थी, अब वो भी धीरे धीरे वीक होती जा रही है. तो हम वहां के जो गैसेस में हमको अलग अलग गैस नजर आती है. यहाँ पे कैसे ऑक्सीजन है, ओजोन के नीचे तो हर जगह ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटेड है. सरफेस के पास ज्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, जो भी व्हाटएवर. लेकिन वहां पे ऐसा कोई भी किसी क्वांटिटी में नहीं है. सब मॉलिक्यूल, सब गैस या लाइटर गैसेस मॉलिक्यूल सब काफी वाइडली स्प्रेड है. हम उनको यूजुअली कहते हैं कि हेटेरोजीनस एटमॉस्फेयर.
है ना। तो यहाँ तक होमोजेनस था मतलब कि ये कहीं भी जाओगे तो आपको हर चीज मिलती है। यहाँ पे कई सारे वी लूज है, वी डोंट हैव मेनी गैसेस द हेवियर गैसेस इन दैट रीजन। तो ये टेम्परेचर के वेरिएशन के बेसिस पे हमने इनको, सपोज मेरे अभी पता नहीं, ये जो हाथ उठा रहा हूँ मैं, ये सपोज नॉर्मल टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर का लाइन है, ओके, और ये जो है टुवर्ड्स जीरो की तरफ जा रहा है। तो ट्रोपोस्फियर में ट्रोपोपॉज तक टेम्परेचर ऐसा कम होता है, जीरो है, कम होता जा रहा है। फिर एक स्टेबल पोजीशन आ गया ट्रोपोपॉज, देन अगेन इंक्रीज होता चला गया टेम्परेचर, राइट। स्ट्रेटोपॉज, स्टेबल हो गया स्ट्रेटोपॉज, इन दोनों के बीच में स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद अगेन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, reaches a point of stability, stable temperature, that's mesopause। फिर mesopause के बाद से continuously temperature increase होते हुए ये लिमिट से भी बाहर चला जाता है, राइट। तो ये जो पॉजेस के थ्रू हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं, हम जोन्स में बांटते हैं, और दिखाया गया है कि करीब करीब 20 किलोमीटर तक हमारा पहला पॉज मिलता है हमें, 20 किलोमीटर के नीचे ही मिलता है फर्स्ट पॉज, दैट इज ट्रोपोपॉज। हम ट्रोपोस्फियर को 20 किलोमीटर तक का काउंट करते हैं, रफ वो है, आई मीन डिमार्केशन है। 20 मतलब आप लड़ना नहीं कि 20 किलोमीटर 20.1 हो गया, यहाँ पे भी ट्रोपोस्फियर दिख रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अप्रॉक्सीमेटली ऑफ दैट किलोमीटर रेंज, सॉरी, वी वुड फाइंड ट्रोपोस्फियर, बिकॉज उसके बाद ही पॉज वाली सिचुएशन, जब पॉज आ गया तो वहां से अब दूसरा स्फीयर शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। दैट इज बिकॉज यू नो स्ट्रेटोस्फीयर कहां से कहां तक है आपको मालूम है? अब वो जो 20 किलोमीटर का जो मैंने आपको बताया, एक पॉज जो आया था करीब करीब 20 किलोमीटर के पास, वहां से वो वापस जब शुरू हुए तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में गए। तो स्ट्रेटोस्फीयर यूजुअली एक स्ट्रेटोपॉज तक रहेगा। तो स्ट्रेटोपॉज ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर के पास है? ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के पास। कितने? 50 किलोमीटर के पास। इन 20 और 50 के बीच में समझिए, किसी किसी बुक्स में आपको 80 किलोमीटर पे दिया हुआ है। जैसा हम जितने पुराने समय मतलब और टाइम पास होता जाएगा तो दिस वुड माइट शिफ्ट टू डिफरेंट लेवल्स, पॉसिबिलिटी है। तो सपोज करिए 50 टू 80 किलोमीटर तक हमारा दूसरा एक पॉज क्रिएट होता है, इसको हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर है जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। व्हाई? क्योंकि देखिए वहां पे जो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही है, एंड इट्स अराउंड, किसी बुक्स में आपको मिलता है कि 25 किलोमीटर पे, किसी में 28 किलोमीटर मिलता है, किसी किसी में बोला है कि वो 35 किलोमीटर पे है। इट डिपेंड्स अपॉन द रीजन टू रीजन। यदि हम ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को तो फिर हमारे लिए और थोड़ा ऊपर मिलेगा। तो वो कितने किलोमीटर का ओजोन लेयर का आपको मालूम है? कितने किलोमीटर तक का ओजोन लेयर होता है यूजुअली? तो देखा यह गया है कि वो करीब करीब 5 किलोमीटर का एक थिक पैच, एक जोन है 5 to 8 किलोमीटर का। तो सोचिए जैसे जैसे हम यहाँ से पोल्यूट करते करते एटमॉस्फेयर खराब करेंगे तो वो 5 किलोमीटर से वो धीरे धीरे 4.5 4.5 मैं फिगर्स में बड़े आसानी से बोल रहा हूँ, टेक्स टाइम, राइट। एंड बिकॉज जैसे मैंने उस दिन बताया था कि कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व्स एंड रोटेट्स, तो वो प्लेस चेंज होती रहती है। बट those countries who are more polluting the atmosphere are doing harm to that layer of ozone, ठीक है। तो ये जो ओजोन लेयर है that comes in the stratospheric region, तो क्योंकि ओजोन जो है वो बहुत सारी चीजों को रोक देता है, फिल्टर आउट कर देता है, तो उसके ऊपर की जो जगह है वो बट ऑब्वियसली गर्म रहेंगी, राइट। इसलिए क्या हो रहा था, ट्रोपोस्फियर में कम हो रहा था बिकॉज ये फिल्टर आउट कर रहा था, टेम्परेचर कम कर रहा था एक लेवल से। थोड़ा सा हम जब ऊपर जाते हैं, सपोज करिए ओजोन लेयर के बाद बहुत सारे फिल्टर हो गई, तो ओजोन के ऊपर में जैसे मैंने बताया था कि सपोज 40 डिग्री है, ओजोन ने रोक के उसको 20 डिग्री कर दिया लेयर के नीचे, है ना। अब लेयर के नीचे से जब हमारे पास आ रही है तो दूर जाएगी तो उसका इफेक्ट, हीट कम होती जाएगी ना, क्योंकि डिसिपेट हो रही, लॉस हो रहा है, हीट लॉस। तो जब टेम्परेचर जब हमारे यहाँ तक पहुंचता है, सपोज 10 डिग्री हो गया सरफेस पे, है ना, लेकिन क्या होता है कि सरफेस पे वो हिट करके वापस
रिबाउंड करती हैं, तो रिबाउंड करते समय यहाँ पे टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है, एक मतलब एक हीट का ऐसा कवर बन जाता है, एंड दैट इज हमारा अर्थ का टेम्परेचर। मे बी दैट इज, सपोज करिए कि यहाँ पे 35 डिग्रीज है ना, बिकॉज ऑफ दैट रिबाउंड एंड स्टेइंग टुगेदर विद द सरफेस। इसीलिए हम जब अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो मैंने कहा था 20 डिग्रीज बताया था, तो 30 से 20 तक के टेम्परेचर कम होता जाता है ओजोन के जस्ट पहले। ओजोन यदि 25 किलोमीटर पे है तो 20 किलोमीटर पे तो हमारा ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोस्फीयर खत्म हो गया। जैसे ट्रोपोस्फीयर खत्म होता है थोड़ी ऊंचाई पे ये है, कौन है, ओजोन लेयर। तो इसलिए ओजोन क्योंकि फिल्टर आउट कर रहा था, तो उसके पीछे का जो रीजन है वो यूजुअली गर्म रहेगा। इसलिए ये पॉज होने के बाद जब वापस हम स्ट्रेटोस्फीयर में एंटर करते हैं तो टेम्परेचर हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, बिकॉज ऑफ दैट ओजोन लेयर का फिल्टर करने का सिस्टम के कारण। लेकिन वो भी देखा गया कि एक समय के बाद जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई है एयर की, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉन टू व्हाट किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर जा चुके हैं हम, कितने किलोमीटर तक जा चुके हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर कहां से शुरू होता है, करीब करीब मैंने बताया था कि 100 तक, है ना। तो जब आप 50 किलोमीटर के अराउंड या 25 किलोमीटर पे ओजोन था, वहां से वो 50 किलोमीटर तक का स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोपॉज आ गया, तो स्ट्रेटोपॉज से फिर से वो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला गया था। अब ये क्यों डिक्रीज होता चला गया था, क्योंकि ये टेम्परेचर वेरिएशन क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ओजोन ने जो फिल्टर आउट किया इसलिए वो स्ट्रेटोस्फीयर गर्म हो गया था। फिर जब हम देखेंगे उसको, क्योंकि गैसेस हैं, तो हमें फिर से वो कम होता हुआ ही नजर आता है। जस्ट मतलब वहां का टेम्परेचर जो सन रेज से आ रहा था वो मान लीजिए 10 का रहा होगा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद, लेकिन क्या है कि ओजोन ने उसको फिल्टर आउट करके वहां पे 20-25 कर दिया, टेम्परेचर रेज कर दिया। दैट वे अगेन, दैट इज व्हाई वो हमें मेसोस्फीयर में हमें फिर से डिक्रीजिंग इन ट्रेंड मिलता है टेम्परेचर में, और वो कुछ एक 20 किलोमीटर पर जाने के बाद फिर से स्टेबल हो जाता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी आती है, बिकॉज ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और वहाँ बहुत लाइट हो गया है, तो वो जो स्टेबिलिटी काफी लंबी रहती है, वो करीब करीब 10 किलोमीटर तक की स्टेबिलिटी रहती है। एंड देन अगेन अब तो गैसेस पूरी पूरी खत्म होती चली जा रही है, तो वो सिंपली इंक्रीज ही करती है टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड थर्मोस्फीयर, क्योंकि वो कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है। तो ये एक मेन रीजन है, कैटेगरी है, जिसे हम कई बुक्स में कोई बोलते हैं 20 किलोमीटर पे, कोई बोलते हैं 10 किलोमीटर पे, और ट्रोपोस्फीयर खत्म हो गया। तो ये मैं आपको जब फिगर्स ना बताते हुए एक रफ फिगर्स बताया मैंने कि 20 किलोमीटर पे आपको एक करीब करीब एक पॉज मिलता है, फर्स्ट पॉज मिलता है, जिसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, वहां तक ट्रोपोस्फीयर, क्योंकि वहां तक टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। फिर जैसे ही हम उसके ऊपर जाते हैं तो वी हैव फाउंड द टेम्परेचर वाज increasing to a point, and it again reaches to a stability that is called stratopause. So from the tropopause to stratopause, that zone is called stratosphere. Why there is an increase of temperature over there in that zone? Because of the ozone layer which is present over there in the stratosphere near to the tropopause. That is why the whole stratosphere becomes a bit warmer, right? And from that pause, it again reaches to a third pause that's called mesopause, and the region between these two pauses is called mesosphere. And the decreasing trend at temperature ka, sorry, you would find it again as it was in the troposphere, right? So once the temperature has again reached a pause position, that's called mesopause, and from there onwards the temperatures constantly increase, and that region is called hydrosphere. एंड बिकॉज ऑफ कई जगह बोला जाता है कि मेसोस्फीयर के एंड में या फिर थर्मोस्फीयर के स्टार्टिंग वाली जो जगह होती है, sometimes in some books doesn't say it's in mesosphere, because of the hydrosphere, because of the increase of temperature continuously, the gases, the meager elements of gases which were present, जो यहाँ वहाँ बचे हुए थे, वो usually ionize हो जाते हैं because of the excessive heat.
तो आयनाइजेशन, तो कुछ लोगों ने उसको आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना है, राइट। और कुछ लोगों ने यानी ना ओजोन लेयर के ऊपर वाले को हमने हेटेरोस्फीयर बोला है, कुछ स्टेबल नहीं है, और नीचे में जो है पूरा उसको होमोस्फीयर कहा है। तो लाइक देयर अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स हैं, कैटेगराइज करने के अलग अलग factors depending upon different factors, but the basic factor on the basis of which the atmosphere have been divided into different zones was temperature and the pressure. Okay, और स्पीड ऑफ साउंड का भी इन्होंने बहुत यूज किया, तब भी देखा गया है कि हमारे जो शटल वॉटल चलते हैं वो सब आयनोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर में जाते हैं। अच्छा, किसी को अंदाजा है कि हमारा एवरेस्ट कितना ऊंचा है? एवरेस्ट कितना ऊंचा है? किसी को नहीं मालूम? Nobody knows it. लास्ट टाइम बात हुई थी शायद अपनी, तो वही 8 से 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से ऊपर है थोड़ा सा, तो वही समझिए कि एक अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर तक आप जानते हैं कितना टेम्परेचर कम होता है, जीरो के नीचे होता है, राइट। उसके बाद फिर वो जीरो से नीचे से होने पर सोचिए कि हमारा एटमॉस्फेयर कितना कंट्रोल करता है। जो 1000 डिग्रीज के टेम्परेचर जब हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारा एटमॉस्फेयर उसको कितना कंट्रोल करता है। सॉरी। और वो क्या कहते हैं उसको, सॉरी, वन सेकंड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जस्ट इमेजिन 1000 डिग्रीज का टेम्परेचर का रेज, सन रेज हमारी अर्थ की तरफ आ रही है, और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे टेम्परेचर कितना कम है। दैट टू ट्रोपोस्फियर में, जो कि पूरा होमोजेनस मिक्सचर है, उसमें जीरो से नीचे चला जाता है। हाउ सिग्निफिकेंट रोल दिस एटमॉस्फेयर प्लेस, बट हम इसी को खराब कर रहे हैं। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट, वी शुड बी intelligently handle the atmosphere, we should be intelligently conserve the atmosphere, और उसको कंजर्व करने के लिए there are different aspects which are to be considered. Okay, आज के लिए बस इतना ही, एंड मंडे ऑनवर्ड्स आप लोग का वेकेशन शुरू हो रहा है, दिवाली का 10th तक है, 11th से वी विल रीजॉइन। और इन केस यदि बीच में कभी कोई क्लास लेनी रही किसी को, क्योंकि कुछ क्लासेस मिस हो जाती हैं यहाँ वहाँ, तो आपको ग्रुप में पोस्टिंग आएगी, पोस्ट आएगा कि हम क्लास ले रहे हैं फला फला टाइम पे, एंड देयर इज अ चांसेस कि आफ्टर द वेकेशन वी वुड हैव अ न्यू टाइम टेबल, इट्स प्रैक्टिकल्स एंड ऑल। There is a possibility that students will be allowed to come to the college, or of course after the vaccinations done, और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम 18 साल के हुए नहीं है। This is a concern, we also know it. Let's see how we do it. We would be calling the final year students first for the practicals, then subsequently we'll start the other semesters, so you need not to worry about that. Okay, and keep in touch through that group. Okay, check for the classes if somebody is taking some extra classes, and I think I have already given, if somebody is missing my class, they can go to the YouTube channel and they can attend the class, because all the recordings of the classes are uploaded on my YouTube channel, and in Teachment also you can find it.
ओके, बिकॉज मैं देखता हूँ कि बच्चे आप लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं यूट्यूब लिंक में। बाकी जब हम हर दिन की क्लास अपलोड हो जाती है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, और टीच मिनट में भी रहता है। बट आई डोंट नो व्हाई, या छोड़ के चले गए हैं बच्चे कि क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट अटेंडेंस काफ़ी कम नज़र आती है। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड happy vacations, happy Deepavali to all. And if at all we are taking some class in the vacation period, except for those festival days, so we would inform you on the WhatsApp group for the teachment. Okay, and if somebody, कोई नए students हैं जिन्होंने admission लिया है अभी फिलहाल, तो they, I would say कि वो थोड़ा सा somehow try to contact the teachers or the students or the fellow classmates so that they can get into the classrooms. Okay. Thank you very much, and happy Diwali.